Students, here is your Krishna ma'am, and today we will talk about your chapter 2, natural resources, land, soil and water. In previous chapter we have studied about resources and their classification. Now in this chapter we will talk about some natural resources like land, soil and water. First of all, land resource. Earth's surface is divided into two parts, that is land and water. And land covers about 30% of the total surface and water covers about 70% of the total surface. Now land use. Land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, construction of roads and railways, grazing of animals, mining, etc. This is commonly known as a land use pattern, and land use pattern differs from region to region and country to country. Countries decide the land use according to their development goals and availability of natural resources. मीन्स जिस कंट्री में जिस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनका लैंड यूज़ पैटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. हमारे देश में प्लेन एरिया ज़्यादा है, इसलिए हम लैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए. ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहाँ पर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लैंड यूज़ होता है पास्चर्स के रूप में, यानी ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के लिए. और जिन कंट्रीज़ में मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ लैंड यूज़ होता है ज़्यादा माइनिंग के लिए. अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉर्म्स 33% एरिया ऑफ द वर्ल्ड शुड बी अंडर फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. But at present only 31% area of the world is covered by forest, and moreover the earth's forest cover is unevenly distributed. Some countries have high concentration of forest but some have very low or negligible. सूरीनाम में जहाँ 98% पार्ट पर फॉरेस्ट है वहीं कतर, ग्रीनलैंड, ओमान जैसे देशों में बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक इनिशिएटिव टू कंजर्व फॉरेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज सोयल रिसोर्स. द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल. It consists organic and inorganic components. Organic component consist of dead and decomposed parts of plants and animals, and inorganic component consist of rock particles and minerals. Now, importance of soil. Soil is very important. Agricultural production is mainly dependent upon the fertility of the soil, and indirectly animals also depend upon the soil to satisfy their basic needs, because soil allows or supports plants to grow, and soil gives shelter to insects and animals like rats, snakes, earthworms, etc. It is also used for making bricks and pottery. Next is factors affecting soil formation. There are 5 factors which affect the formation of soil. First, parent rock. The original rock from which soil is formed by the process of weathering is known as the parent rock. मीन्स जहाँ जिस तरह की चट्टानें हैं वहाँ उसी तरह की मिट्टी बनकर तैयार होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं इग्नियस रॉक्स है तो ऑब्वियसली वहाँ पर ब्लैक सोयल ही तैयार होगी. नेक्स्ट इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफिकल वेरिएशंस सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ ए सोयल कवर.
माउंटेनियस रीजन्स में जहाँ स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ बहुत ही सैलो और थिन लेयर तैयार होती है सॉइल की, और उसके अतिरिक्त जहाँ पर प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा थिक और फर्टाइल लेयर तैयार होती है सॉइल की। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल आल्सो अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। जहाँ हाई रेनफॉल होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, रॉक्स आर इजीली वेदर्ड, चट्टानें आसानी से टूट जाती है और वहाँ जो सोयल है उसकी थिक लेयर बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर आल्सो सपोर्ट द soil formation. Remains of dead and decomposed plants and animals provide humus to the soil, which enriches the fertility of the soil. जितने ऑर्गेनिक कंपोनेंट सोयल में मिलेंगे उतनी ही वो ज़्यादा उपजाऊ बनकर तैयार होगी। एंड द लास्ट इज टाइम। टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू द सोयल। मिट्टी को बनने के लिए जितना समय मिलेगा वो उतनी ही थिक और फर्टाइल होगी, क्योंकि सोयल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है। एक लेयर बनने में भी हज़ारों साल लग जाते हैं। नेक्स्ट इज सोयल इरोजन। व्हाट इज सोयल इरोजन? टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सोयल इज कॉल्ड सोयल इरोजन, and it is removed by some natural agents like water, wind, glaciers, etc. And the soil is also eroded by mankind's unwise actions such as deforestation, overgrazing, and mining. Now soil conservation. Soil conservation means prevention of soil from being eroded, यानी कि मिट्टी को कटने से बचाना, उसके अपर्दन होने से बचाना, ये सोयल कंजर्वेशन कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। हियर वी डिस्कस सम स्टेप्स बाय विच वी कैन कंजर्व सोयल। फर्स्ट, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड्स द सोयल। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही मिट्टी का कटाव कम होगा, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती है। नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट्स। रोज ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन्स टू प्रोटेक्ट द फील्ड्स फ्रॉम विंड इरोजन। राजस्थान के इलाकों में मेनली जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं भी मिट्टी का कटाव करती हैं। ऐसे में खेत के चारों ओर लाइनों में पेड़ लगाएं, जिससे कि मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। नेक्स्ट, टू चेक ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक शीप्स एंड गोट्स मस्ट बी चेक्ड। पशुओं को हमेशा चरने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पशुओं के जो खुर है वो भी मिट्टी को काटते हैं, जिससे उसका अपर्दन होता है। नेक्स्ट, टू चेक रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। आज डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है अंधाधुंध, इससे भी मिट्टी का कटाव होता है। इस चीज़ को भी हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग एंड कंटूर प्लोइंग। हिली एरियाज़ में हम वेदिका खेती कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम खेत बना सकते हैं। समान ऊंचाई वाले अलग अलग टुकड़े खेतों के बना सकते हैं, जिससे पानी बहुत धीरे बहकर जाएगा। इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा और ज़मीन के अंदर भी पानी जा पाएगा। नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्स। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स. Our earth is called watery planet due to the abundance water found on it. Nearly 70% of the earth's surface is covered with water, and after that we say that there is water scarcity all over the world. Why it is so? Because about 97% of the earth's total water is present in the oceans and seas, and this is saline water. It is not usable for
us. Remaining 3% is fresh water. It is found in lakes, rivers, ice caps and groundwater. After that, there is the scarcity of water. There are two reasons for water scarcity. First is water is unevenly distributed. Some areas of the world receive about 400 centimeter annual rainfall. On the other hand, some areas only receive below 10 centimeter annual rainfall. और जिन एरियाज़ में बहुत कम बारिश होती है वहाँ हमेशा ही वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ pollution of water. The quality of water in some rivers is adversely affected as the untreated industrial waste and urban waste is dumped into them. This makes the river water unsuitable for consumption. कि नदियों में इतनी गंदगी बहा दी जाती है कि वो पानी भी हमारे किसी काम का नहीं रहता है. And next is multi-purpose river valley projects. What are multi-purpose river valley projects? These projects have been developed all over the world to utilize water. And under a multi-purpose river valley project, a dam or a series of dams are constructed across the river for storing water. And this stored water is used for various purposes such as irrigation, generating hydroelectricity, afforestation, flood control, navigation, etc. So we can say that these large dams are very beneficial for us. But nowadays large dams have come under a lot of criticism from environmentalists as they are causing ecological problems such as extensive forests submerged under water. जहाँ पर बड़े बांध बनाए जाते हैं वहाँ जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, वो पानी में डूब जाती है. एंड सेकेंड, रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड, क्योंकि जहाँ बांध बनाया है नदी का पानी वहाँ लाना होता है. इससे नदी का जो एक नेचुरल एक फ्लो है उसको भी डाइवर्ट करना पड़ता है. पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड, जहाँ बांध बनाए जाते हैं वहाँ रहने वाले लोगों को भी वहाँ से निकाला जाता है. उनका जो एक आवास है वो उनसे छिन जाता है. एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, जो ताज़ा पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो भी स्टोर्ड वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड्स आर कोज्ड, जो बड़े बांध फ्लड कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती है तो उनमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और कई बार बांध टूट जाते हैं और बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं. नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन. Water is very important resource and there is water scarcity all over the world, so we should conserve water. There are some steps by those we can conserve water. First, water harvesting. Water harvesting is one of the methods of saving surface water runoff. हमारे यहाँ बरसात कुछ ही महीने होती है, 3.5 से 4 महीने. उसके बाद सूखा रहता है, तो जब बारिश होती है तो उस वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं. राजस्थान में जैसे घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है और पूरे साल भर वो लोग उस पानी का इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड इज़ वेजिटेशन कवर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ पानी के फ्लो को कम करते हैं और इससे पानी को ज़मीन में जाने का अवसर मिलता है, जिससे ग्राउंड वाटर स्टोरेज हमारा तैयार हो जाता है. और फ्लो कम होने से
वो बहकर सागरों और महासागरों में भी कम जा पाता है। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग। मेनली इंडस्ट्रीज़ का जो पानी निकलता है उसकी रिसाइकलिंग करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। हमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए सिंचाई के लिए। नहरों के माध्यम से जो सिंचाई करते हैं उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, नहरें भी टूटती हैं, इवापोरेशन भी होता है। लेकिन अगर हम ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई करें तो भी हम पानी को बचा सकते हैं। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स सच एज सेंसर टैप्स इन पब्लिक प्लेसेस। मेनली पब्लिक प्लेसेस में जो नल लगे होते हैं बिना ज़रूरत के भी वो चलते रहते हैं, इससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और हमारे जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पानी पहुँच भी नहीं पाता है। इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर जो नल होते हैं वहाँ सेंसर टैप हमें लगाना चाहिए ताकि जब ज़रूरत ना हो तो उनको बंद करें और इस तरीके से भी हम पानी को बचा सकते हैं। So this is all about your this chapter beta. Goodbye, take care. Let we see in the next one.